Hey guys, good evening to everyone who are here with me. My name is Shahid, and we are back with Trade Smart to have another interesting day, another interesting episode where we are going to have a lot of discussion, a lot of topics to speak about. But speaking about the day which is today, the occasion that is Children's Day, it is something special. It commemorates the birth anniversary of Prime Minister of our first Prime Minister, Mr. Pandit Jawaharlal Nehru, and it signifies and fosters about how much you give it for your children. It's more primarily celebrated with a certain with a certain age group of children, and it's observed all across our country. So yeah, and I think our children are the growing pillars of our future. And in today's topic, we are going to discuss about how there is a certain section, or there's a certain amount of certain sphere which is still lacking amongst the children of our of the young age, which is basically about the financial concepts. There are a lot of things to discuss, a lot of things to speak about why such things are not included, why they are quite unaware of it, and how, as we as elders, we can help them learn about it. So, having such interesting conversation with everyone, I think we'll invite our guest speakers who are going to discuss with us about on this entire topic. Let me add them over here. Yeah, just give me 1 minute. Hi. Yes, so we have hi Pallavi. We have Pallavi with us Mm. on this live session, and we have Mohak Hi. Pachisia. Hi Mohak. Hello. Hi. Very good afternoon. Okay. A very good Evening now. afternoon. I think we are about to enter into the evening. Evening now. So yeah, it's great meeting both of you. But before we move further into the topic, I would really like to request both of you to please introduce yourself so that our viewers know more about you. So please give us a small introduction about yourself. So, hi, Shahid. Hi, Mohak. So, hi, guys. I'm Pallavi. I am a financial influencer. I teach people on financial literacy, and I am also a banker by profession. So, I've learned in my life how finances can play a vital role in your life. And apart from being, financially aware, you need to be financially literate. Oh, that's Mm. great. That's great. Mohak, can we hear from you as well? Very good evening, everyone. Hello once again. So, my name is Mohak Pachisia. I'm a full-time trader, and about 6.5 years back, I started training people on how to trade the stock market. So, having my expertise in the analysis of stock market, what I realized is that not just as the young age group, as in the 20s, etc. People from a very young age need to be aware. Otherwise, they will get easily distracted when they get the money in their hand. And you need not be aware of every little thing, but from a broad perspective, know what it means, know how the system works, how taxes work, how the economy works, and that adds a lot to your future. So I think this is what we're here to talk about today. Yeah, we are going to have a very vivid discussion about how the influence or bringing the financial concepts or bringing such kind of value into young kids' mind is actually going to help them, and how that has been lacking in schools basically. But before moving forward into this topic, I would like to know more first from your perspective, like when you were young, how you used to see stock market from your vision. Like I'm saying about the age group, like of around 10 to 15 or 16 maybe. At that time, how you used to perceive this entire industry. We'll go first with Pallavi. So when I was at the age of 10 to 15, I think I was totally unaware about stock market. I still remember कि उस time पे paper पे जाके broker house जाके father used to fill out the forms. Apart from that, I knew nothing. I knew zero. But मुझे ये आइडिया था कि स्टॉक का समथिंग जहाँ पैसा बन भी सकता है और पैसा खत्म भी हो सकता है.
So we were literally, told by other people. Though my parents were, very conscious about telling us about stock market, but लोग बोलते थे यार पैसा खत्म ही हो जाता है स्टॉक मार्केट में, पैसा डालना ही नहीं है, डालना है तो पोस्ट ऑफिस में डाल दो या पीपीएफ में डाल दो, तो स्टॉक मार्केट में मत डालो. एंड दैट वाज द टाइम में लोगों को ऐसा लगता था अरे यार स्टॉक में डाल दिया तो पैसा गया ही गया. So that was very scary at that moment for us. That's quite very relatable. That used to happen when, because those times when I'm speaking about our case or our scenario when we used to be young, I think उस वक्त इतना digitization नहीं था, उस वक्त इतने सारे resource materials नहीं होते थे online. So this used to be a kind of notion which our parents, which we used to have around us. Mohak, what do you have to say on this? Well, mine has been a very different trajectory because काफी डेप्थ मुझे मिल गई स्टॉक मार्केट को लेके थ्रू माय फादर. सो जैसे बच्चों के आसपास अगर आपके बुक्स हैं तो दे गेट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग. मेरे घर पे हमेशा सीएनबीसी चलता था और जब टेक्निकल एनालिसिस में भी इंटरेस्ट इसीलिए आया बिकॉज मैंने अपने फादर को ग्राफ पेपर पे चार्ट बनाते हुए देखा. और जब भी कोई प्रोडक्ट होता है, आज आप छोटी सी चीज ले लो, च्यवनप्राश है, आज मोला है, अब ये डाबर का है, तो मैं देखता था कि पापा वो देख रहे हैं कि कौन सी कंपनी है, सो एंड सो लिमिटेड. तो धीरे धीरे मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी तो मैं और पूछा कि चलो व्हाट इज अ कंपनी, व्हाट आर मेंबर्स. 4 दिन बाद जब थोड़ा और समझा तो पूछा व्हाट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. तो वो क्यूरियोसिटी आई थिंक फुलफिल करना वो मेरे साथ बहुत, आई वाज लकी टू हैव दैट. और बहुत सारे बच्चे या आज के जो मॉडर्न डे पेरेंट्स हैं वो क्यूरियोसिटी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, विच आई सी अ गैप. जैसे मेरे दोस्त के साथ एक बार उसके फादर के साथ हम डिनर पे गए थे कहीं, तो उसने पूछ लिया कि भाई आप मतलब ये जगह कितना कमा लेती होगी. ठीक है, एक बेसिक अवेयरनेस की बात है. तो उसके फादर ने बोला तुम खाना खाओ, एंजॉय करो, ये सब पूछो मत. लेकिन फिर मैं जब पूछता था तो मुझे एक एक कॉस्ट निकाल के पापा बता देते थे. तो ये छोटी छोटी बात, आप बिजनेस को समझते हो तो आप बड़े बिजनेस को समझोगे तो आप स्टॉक मार्केट को समझोगे. तो आई थिंक यहाँ से मेरा कुछ शुरू हुआ था एंड दैट इज हाउ आई बिकेम अ. Wow. And maybe during that time उस वक्त आपके आसपास इतना अवेयरनेस होता है, इसीलिए आपको काफी काफी छोटी छोटी चीजों का आपको अंदाजा होता है which actually helps you learn ahead. But I think इंडिया में या मेजर केसेस में ऐसा देखा जाता है ऐसा अवेयरनेस होता नहीं है, क्योंकि अब जो नॉर्मल चिल्ड्रन है वो स्कूल में अगर एबीसी से अगर सीखते हुए जा रहे हैं, अगर उनके उनके सराउंडिंग में अगर हम ऐसी बातें करें, ऐसे वर्कशॉप्स करें, तो ये उनको काफी हेल्प करता है. So we will discuss right about the topic about what is the actual importance, why financial concepts or why such kind of a subject should be introduced into, क्योंकि अब देखिए अब बच्चों को I think from 5th या 6th grade से शायद उन्हें algebra, trigonometry, they study so many things which after a certain point of time are very much helpful for a competitive level. But when you know about the trade market, it's ever evolving. It has been happening. When such kind of concept has been, इसको completely हटाया गया उनके माइंड से. इनको बहुत टाइम के बाद शायद इस चीज के बारे में नॉलेज आता है. तो इसका इम्पोर्टेंस फाइनेंशियल लिटरेसी का किड्स में होना क्यों जरूरी है, एंड इसे हम कैसे नेग्लेक्ट होने से रोक सकते हैं? कैन वी डिस्कस अबाउट दिस मोर, एंड आई विल आस्क पल्लवी टू स्पीक ऑन दिस फर्स्ट. So, like you said rightly कि financial awareness बच्चों में होना जरूरी है. And if you find our current curriculum that is there will teach you about saving electricity, saving water, yeah, save your earth, save petrol, greenery, everything. But जब वो saving concept आ रहा है, nobody teaches you about the saving concept of saving money or the concept of spending or earning. आई थिंक दैट कॉन्सेप्ट इज मिसिंग. और आप देखोगे जितनी भी आजकल न्यू जनरेशन आ रही है, जितनी भी जनरेशन जो अर्न कर रही है, दे आर नॉट स्पेंडिंग वाइजली. और वो वाइज स्पेंडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, अगर हमें सिखाया जाता स्कूल में तो शायद हम बेटर होते. People learn from their mistakes. It is said that in finances, the mistakes are what teaches you for your future. बट क्या ये चीज हम रेक्टिफाई कर सकते थे स्कूल में केस स्टडीज देके या स्कूल में ही स्पेंडिंग हैबिट डाल के एक जार ही बनवा लेते?
आई रिमेम्बर एक हमारे स्कूल में टीचर्स बोल रहे थे कि आप मनी जार रखो, आप उसमें एक एक रुपया डालो, बट रुपए डालने को बोला जाता था, उसको कैसे स्पेंड करना है ना आगे नहीं सिखाया गया। आई नेवर न्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेंडिंग। और आज की डेट पे अगर आप लोन्स और वो देख लो, हाँ, अगर आप 10 साल पहले जाओ, लोन्स आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट। सो अ पर्सन वाज गेटिंग इनटू अ बिजनेस, टू गेट अ बिजनेस लोन वाज डिफिकल्ट, बट आज की डेट पे पर्सनल लोन बहुत इजी हो गया है लेना। आप देखो, आपको मोबाइल लेना है, एंड इवन इफ यू आर नॉट अर्निंग अ लॉट, बजाज फाइनेंस आपके पास आता है, बोलता है आपको मोबाइल लेना है, आप ईएमआई पे ले लो। But what is the implication of you taking it on EMI and not paying it? किसी ने नहीं सिखाया। स्कूल का बच्चा जो कॉलेज में आया है, उसको भी ईएमआई पे आप मोबाइल दे देते हो, बट क्या आप उसको सिखा रहे? एंड दिस अवेयरनेस बीइंग लैक्ड ओवर देयर, I see a lot of people going into a debt trap, and that is where we need to change our curriculum and teach them that this is debt, this is saving, this is spending, this is earning, and these are assets. I hope शायद changes आए। शायद चेंजेस हैं, शायद एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मे बी जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसका जो एंटायर स्ट्रक्चर है इट इज इवॉल्विंग। वो तो अच्छी बात है, उसके सिलेबस के हिसाब से बच्चों वो इवॉल्व कर रहा है, एंड आई थिंक वेरी सून मे बी हम शायद अपने एजुकेशन सिस्टम में ये देख पाएंगे। बट मोहक आप ये बताइए कि इतने लंबे सिरे तक जो अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस हिसाब से बना हुआ है, डोंट यू थिंक दिस हैज एक्चुअली अफेक्टेड आवर चिल्ड्रन के एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, किसी का भी केस ले लो, उनको काफी डिफिकल्ट हो जाता है इस कंसेप्ट को फिर वापस काफी फेमिलियर होने में, बिकॉज यू हैव बीन फ्रॉम सराउंडिंग जहाँ पे आपके चारों तरफ इन चीजों के बारे में बातें हो रही थी। इमेजिन अ केस जब ये सब चीजें नहीं होती, you wouldn't have been quite familiar with something which you're actually interested about, you have been into this industry for so long, so uh, कैसे इस चीज को हम बेटर कर सकते हैं, एंड हाउ व्हाट पॉइंट्स वुड यू लाइक टू ऐड दैट फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों में उस लेवल से होना बहुत जरूरी है, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? वैसे I completely agree with some of the practical points पल्लवी जी mentioned. On the other hand, एक चीज अगर हम समझें कि रूट लेवल पर एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, और वो है कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और दूसरी बात ये है कि आज जैसे जो बड़े होते हैं वो बच्चों को वैसे ट्रीट करते हैं जैसे उनकी हिस्ट्री रही है। तो जिन माता पिता के पास उन्होंने थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखा है, ठीक है, और वो इतने भी वेल ऑफ नहीं है कि कल मर्सिडीज दिला दें, तो वो अपने बच्चों को कॉन्जर्वेटिव रखते हैं। और जो माँ बाप ने बचपन में धन नहीं देखा, बाद में बहुत धन देख लिया, तो बच्चों को बिगाड़ भी देते हैं, बोलते कि जो हमने एंजॉय नहीं किया आप पूरा एंजॉय करो। तो ऐसे बढ़ गया है हमारा कहीं ना कहीं सोसाइटी, क्योंकि हमारे कंट्री में हमने इसको रूट से ही ऐसा कंपैरिजन लेवल पर रखा है चीजों को। बच्चों को एटीट्यूड भी वैसा है कि भाई एक दूसरे से कंपेयर करें, पहले मार्क्स कंपेयर करते हैं फिर सैलरी कंपेयर करने लगते हैं। तो लॉन्ग रन में ये जो रूट्स में इमोशनल एज वेल एज एजुकेशन वाइज जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनको सेट करना पड़ेगा ठीक से। एज ए कंट्री एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात नहीं होती है, तो पैसों को आप यूज कैसे कर रहे हो इसकी बात ना सेविंग्स और अर्निंग्स के मामले में होगी, ना उसको क्रिएटिवली कोई बिजनेस के तौर पे आप करो, ना उस मामले में होगी। तो जो बच्चे हैं उनके मन में यही छाप है कि मुझे सो एंड सो पढ़ाई करनी है और सो एंड सो जॉब लेना। अब अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो लास्ट में जाके जॉब करने के बाद भी वो इसी क्वेश्चन मार्क बड़ा सा एक बन जाता है कि या तो मैं अब अपनी सेविंग्स का करूं क्या, या तो मैं अपने पैशन से, या तो मार्केट हो या कोई भी और एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी हो, वहां पे कैसे अपने आप को पार्टिसिपेट होने। तो वो सारे फियर्स और ऐसे जम्बल अप हो जाते हैं जो कि बाहर की कंट्रीज में कई जगह नहीं है। एंड वी हैव टू एक्नॉलेज दैट वी आर डेवलप्ड इनफ, और मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आर डेवलप्ड इनफ टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप और बच्चों को इंकरेज करे उस चीज। सो आई थिंक दैट इंकरेजमेंट एट बोथ इमोशनल लेवल एंड द प्रैक्टिकल स्टडीज। जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आज वो इकोनॉमिक्स क्लास 11-12 का बच्चा पढ़ रहा है, उसको पता है कि मैं अगर चाय या कॉफी के डिमांड को कभी भी कम नहीं होगी इकोनॉमी में, तो आज वो ये देखते हैं कि टाटा कंज्यूमर एक स्टॉक है, क्योंकि वहां पे चाय कॉफी और इस टाइप के एफएमसीजी गुड्स बनते हैं, तो उनकी डिमांड कम नहीं होती, उनका एक ग्रोथ स्टॉक के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो टीचर भी बता सकते हैं, बट प्रॉब्लम है कि ये आप पढ़ाई करो और रट के एग्जाम दे दो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ है ही नहीं। प्रोजेक्ट भी मिलता है वो बस सुंदर सुंदर काट के लास्ट हॉलीडे के लास्ट डे में आप चिपका के प्रिंट आउट निकालो, मम्मी पापा को जगाओ,
उसी चक्कर में। आई थिंक दैट इज समथिंग, एसेंस को फील करना बहुत जरूरी है एजुकेशन में। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। मतलब वो जितना ज्यादा हम उनमें एक फेमिलियरिटी या एक मतलब उनके लिए एक रोजमर्रा जैसी चीज अगर हम जितना ज्यादा हम बनाने लग जाए ना, कि हाँ ये भी बेटा, ये भी एक एबीसी जैसी चीज ही है जिसको आप आसान तरीके से समझ सकते हो, तो शायद ये हेल्पफुल हो सकता है। और आई थिंक हर चीज उन्हें बुक्स से तो उन्हें हेल्प नहीं होगा, इफ दे आर रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स, और ये उनसे हेल्पफुल नहीं होगा। उन्हें बड़े बेसिक चीजें, उन्हें बड़े आसान भाषा में आसान सी छोटी छोटी चीजें उन्हें समझ में आनी चाहिए, आपको उस तरीके से समझाना चाहिए। तो इन दिस onto this entire thing we are going to move to our next section. It's a very small segment जहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे, और आपको उन पॉइंट्स को बड़ी ही सरल भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाना होगा। These are much related to the finance and stock industry, and we'll go one by one with both of them. So the first topic is the difference between assets and liabilities. ये I think सबसे बहुत ही कॉमनली स्पोकन कंसेप्ट है। जब हम भी जब कॉलेजेस में जब मतलब मैनेजमेंट के कोर्सेज जब पढ़ते, तब हमारे टीचर्स भी बड़े फनी एग्जांपल से हमें समझाते थे व्हाट आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बट वी यूज्ड टू गेट शॉक्ड कि हमें नहीं पता था दैट दे हैव अ कैटेगरी लाइक दिस। सो मोहक, सबसे पहले आप बताएं कि बड़े ही सरल भाषा में आप एसेट्स और लायबिलिटीज को कैसे डिफाइन करते हैं और उन्हें कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अच्छा, जस्ट टू आस्क यू, क्या मैं बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ या पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ? आप ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो उन्हें वहां पर उन्हें उतनी ईज से उन्हें समझा सके। ठीक है, तो आप बच्चों को समझाने के लिए मैं सिंपल बोलूंगा कि एक रिपोर्ट कार्ड निकलता है हर कंपनी का। रिपोर्ट कार्ड में क्या है, दो सेक्शन होते हैं। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जहाँ पे उनके रेगुलर इनकम्स और एक्सपेंसेस के बारे में होता है, और एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड होता है जो सारे टर्म्स का कंसोलिडेट होके आ जाता है, फाइनल रिपोर्ट कार्ड। और उस रिपोर्ट कार्ड में ये दिखाया जाता है कि ये हमारे एसेट्स है। तो कंपनी के पास अगर गाड़ी है, प्लांट्स है, इन द सेंस फैक्ट्रियां हैं, तो वो सब एसेट साइड में आती है। या तो वो उनको फ्यूचर इनकम देगी जो एसेट है, और जो लायबिलिटी है वो है जो उनको देना है। हो सकता है उन्होंने कहीं उधार लिया है, वो देना है। और लायबिलिटी सेक्शन में एक कैपिटल वाला सेक्शन भी आता है, वो है कि जो कंपनी की खुद की स्टार्टिंग कैपिटल थी, क्योंकि ये माना जाता है कि वो कैपिटल भी कंपनी को बिजनेस से निकाल के रिकवर करना है। एसेट साइड में कैश भी होता है, और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं जो स्टॉक मार्केट में हो या म्यूचुअल फंड्स में हो। वैसे हमारे पर्सनल फाइनेंस में हर एक इंसान की भी एक बैलेंस शीट होती है, और आपके पास जो भी आपके चाहे गुल्लक में हो, चाहे सेविंग्स अकाउंट में हो, चाहे किसी और टाइप के इंस्ट्रूमेंट में हो, वो आपके एसेट्स बन जाते हैं। और अगर आपने ईएमआई पे गाड़ी ले ली और उसके ईएमआई चुकाना बाकी है, तो वो आपका लायबिलिटी बन जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। That was really interesting. पल्लवी, आप बताएं, आप अपने आप बच्चों को अगर आपको समझाने को होगा, you'll be introduced into a class of standard 2 or 3, how will you explain them about assets and liabilities का difference? मैं अपनी बेटी को पता है कैसे समझाती हूँ। लेट्स से कि आज तुमने 10 रुपए जोड़े हैं और 10 रुपए से तुमको पेंसिल खरीद के आना है। तुम्हारा पेंसिल कॉस्ट कर रहा है 8 रुपीज। आपने पेंसिल खरीद लिया 8 रुपए में। पेंसिल आप फ्यूचर में यूज कर रहे हो, वो आपका एसेट हो गया। अब आपको रबर खरीदने जाना है। आपके रबर को खरीदने के लिए 4 रुपीज लगा। आपने 2 रुपए मुझसे उधार लिया, इसका मतलब आप 2 रुपए का लाइबिलिटी बन गया मेरे से। तो See, अब याद रखना, नहीं तो वो रबर चला जाएगा, लाइबिलिटी बन right, गई, right, है ना। तो बच्चों को right. समझाना आसान चीज है। एंड आई थिंक जब हम एसेट एंड लाइबिलिटी बच्चों को समझाते हैं ना, हमें उनको चॉइस भी सिखाना चाहिए, क्योंकि तभी तो बच्चे सीखेंगे कि मुझे कौन सी पेंसिल जाके चूज करनी है जो मेरी पेंसिल आगे जाके मेरे लिए एसेट बनेगी। पर चलो मैं कोई ऐसी नॉर्मल सी पेंसिल ले आई जिसकी लीड टूटती रहती है, तो कोई वो मेरे लिए एसेट नहीं हुआ, वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी होगी कि मैं उसको शार्प करी जा रही हूँ और वो छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। बट अगर मैं अच्छी पेंसिल लेके आती हूँ, नटराज की एचबी की पेंसिल लेके आई और जो एक शार्प के बाद उसकी लीड चलती जा रही है, तो मेरे लिए एसेट है वो। Right, right. In that easier way, बच्चों को उसी हिसाब से उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा what stands as assets and liabilities. The second topic which we'll discuss about good debt and bad debt. We'll start from Pallavi this time.
चलो, गुड डेट और बैड डेट में आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल जो मैं अपनी बेटी को ही सिखाती हूँ, बाकी नहीं। हाँ तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने आपने आज खरीदी 5 चॉकलेट, ठीक है, 5 चॉकलेट आज एक ही दिन में खत्म कर दी। तो आपके 5 दिन की चॉकलेट 5 दिन में जानी थी, 5 दिन, वो क्या बन गया? आपका बैड डेट बन गया, क्योंकि आपने मुझसे खरीद तो ली, आपने पैसे नहीं दिए मुझे अब, बट आप एक ही दिन में खत्म कर गए। अब नेक्स्ट डे फिर आओगे मेरे पास बैठ के, फिर बोलोगे मुझे चॉकलेट चाहिए, फिर मुझसे उधारी लोगी, फिर अगले दिन एक और उधार बढ़ जाएगा तुम्हारे सर पे, इसका मतलब वो बैड डेट हो गया। अगर यही 5 चॉकलेट तुमने 5 दिन खाई होती तो ये गुड डेट की तरह चलता, क्योंकि एक दिन का उधारी तुमने सिर्फ 1/5 पे ही लगाया, फिर तुम्हारे नेक्स्ट डे में फिर एक और 1/5 लगा, तो वो गुड डेट था तुम्हारे लिए। आई होप राइट। बच्चों को समझाना गुड वेरी डेट बैड ब्यूटीफुल। डेट वेरी इजी वे चलता है, बट हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं बच्चों को समझाना कि गुड डेट और बैड डेट होता क्या है। तो आई राइट होप राइट। व्यूअर्स वो शायद ये छोटी छोटी चीजें अपने बच्चों को समझाने के लिए इजीली कर पाए। Yeah, definitely. I think बहुत can you also suggest one more example, good date और bad date, इस तरीके से हाँ इंटरेक्टिवली कैसे आप समझा पाओगे? हाँ, मैं इससे पहले वाला आंसर थोड़ा सा बड़े लोगों वाला दे दिया, मुझे रियलाइज होता है। तो अब मैं बच्चों वाला आंसर दूंगा कि अगर आप अपनी बैडमिंटन रैकेट अपने दोस्त को देते हो और वो जो है दोस्त है वो उससे वापस आनी नहीं है कभी, तो वो हो गया बैड डेट। और यही है कि और यही है कि आप ऐसे दोस्त को देते हो जो आपके साथ भी शेयर करेगा बाद में, तो वो गुड है। तो आप कुछ भी कहीं पे एक्सपेंडिचर करो या कहीं पे अपनी कोई चीज दो और उसका कुछ पॉजिटिव रिटर्न हो, तो वो गुड डेट है, नहीं तो समझ लो वो गई। तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर, चाहे वो फ्यूचर में जाके पैसों की बात हो या छोटी छोटी चीजों की बात आज के दिन में हो, यू हैव टू बी अवेयर कि आप कहाँ क्या चीज अपने से दूर कर रहे हो। यही आंसर है मेरा। सही बात है। The next topic on which we'll discuss is about compounding and investing. And we'll start from Mohak this time. ओके, तो कंपाउंडिंग और इन्वेस्टिंग इसमें क्या डिफरेंस है? और आप समझ लीजिए हमारी ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी एक छोटे से सेल से शुरू होती है। आप बच्चे होते हो, आप बच्चे से धीरे धीरे ग्रो करते हो। तो आप ये नहीं देखते हो कि मैं रोज 1 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा हूँ या कितना मिलीमीटर ग्रो कर रहा हूँ। आप ये देखते हो कि आपके मसल्स बन रहे हैं, पूरे ऑर्गन्स और सब ओवरऑल ग्रोथ होती है। तो इसका जो इक्वेशन है वो काफी इन डेप्थ इक्वेशन है, इसको कोई इक्वेट कर नहीं सकता इजीली। तो हमें ये क्या करना है कि जब हम जो आपने कंपाउंडिंग की बात कही, तो जब भी हम किसी चीज को बढ़ता हुआ देखते हैं, किसी चीज की ग्रोथ देखते हैं, यही बात होगी कि आज आपका फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह है, तो आज अरिजीत सिंह को 500 रुपए या 1000 रुपए भी स्टेज शो के मिलते थे किसी जमाने में, लेकिन उसने अपने टैलेंट को वैसे ग्रो किया जिसका कोई इक्वेशन नहीं है, आज उसको एक शो के करोड़ों रुपए भी मिलते हैं। तो ये हो गया अपना कंपाउंडिंग। अब बात है इन्वेस्टिंग की। अब आप अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फर्क को समझो। हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग गोल्ड में ही, वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ज्यादातर सेविंग्स होती है कि बाद में कभी यूज करेंगे, तो गोल्ड में पैसे डालते हैं ज्यादातर, आप ये देखते हो। लेकिन इन्वेस्ट करना ये नहीं होता है। इन्वेस्ट करना होता है कि आज जो मैं काम कर रहा हूं, आज सपोज मेरा काम है कि मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ और खुद की ट्रेडिंग करता हूँ, ये एक जगह से मेरे इनकम का फ्लो आता है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, मेरे दोस्त ने एक दुकान डाली कपड़ों की, मैंने उसको कुछ पैसे दिए कि तू अपने हिसाब से बिजनेस कर, मेरे को इसमें इंटरेस्ट प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैंने वहां इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो मेरे काम से कोरिलेटेड नहीं है। तो मेरी सेविंग्स ऐसी जगह से पैसे अब मेरे को जनरेट करके देगी जहां से मेरे को कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी, बट मैं बैठे बैठे उसमें एक रिटर्न कमा सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टिंग। और अच्छा, कंपाउंडिंग, इन्वेस्टिंग और थर्ड वाला वर्ड, आई एम सॉरी फॉर व्हाट। यही दो ही था, कंपाउंडिंग अच्छा, एंड दो ही इन्वेस्टिंग का था। बताना था। हाँ, तो ये है इन्वेस्ट ग्रेट करना। ग्रेट। अब ये लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट और ऐसे कई सारे एवेन्यूज होते हैं जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये मेरा आंसर। राइट राइट। पल्लवी, आप अपने व्यूज बताएं कि आप इसको कैसे समझा पाएंगे। आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए से आप जाके बीज खरीद के आते हो, सो आपने सीड्स खरीद लिए, उस सीड्स को आपने प्लांट किया, उस सीड से आपके कोरिएंडर लीव्स आ, ठीक है, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आप उस कोरिएंडर लीव्स को ज्यादा में बेचोगे क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट हो गया। लेट्स से एग्जांपल, आपने रोज प्लांट लगाया था, अब वही रोज प्लांट को आपने काट के एक और रोज प्लांट लगाया, फिर एक और लगाया, फिर एक और लगाया,
वो आपका कंपाउंडिंग हो गया, क्योंकि आपने एक से उसको दुगना किया, तिगना किया, चौगुना किया, आपने उसको Right. कंपाउंड। तो आपने पहले एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और उसी इन्वेस्टमेंट को आपने ग्रो किया कंपाउंड करने के लिए। अब वही आप धनिए के सीड्स जो आपके पास इतने से थे, वो आटे 2 रुपए के थे। अब आप धनिए का गुच्छा बना लिए, वो अब आप बेच रहे हो 30 रुपए में। तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। अब उसी धनिए से जब सीड्स आएंगे उसको और करोगे, आप कंपाउंडिंग करते जाओगे, फिर आप बढ़ाते जाओगे। हो गया, बच्चे सीख गए कंपाउंडिंग और इन्वेस्ट। राइट। बहुत बहुत ही मतलब बहुत ही इजियर टर्म्स में और बहुत रिलेटेबल एग्जांपल से भी ये बच्चे इसको काफी अच्छे से समझ पाएंगे। दैट इज ट्रू। वी हैव नेक्स्ट और टॉपिक दैट और इज। पता हाँ हाँ है, पता है, हाँ हाँ, ये बोलिए। एग्जाम्पल मैं बच्चों के लिए नहीं कोट करती हूँ, मैं हाउसवाइफ, क्योंकि ना हाउस ये इसी तरीके से सीखती है। अगर आप देखोगे, जब वो खुद सीखती है तो अपने बच्चों को वही सिखाती है। अगर आप कहते हैं ना अपनी गृहिणी को सिखा दो, बच्चा तो सीख गया। आई थिंक हमारे व्यूअर्स में जितने पेरेंट्स भी हैं, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट कि वो सब अपने बच्चों को सिखाएं। आई थिंक बहुत सारे ऐसे होंगे जो खुद भी इस चीज को सीख रहे होंगे फिलहाल। राइट राइट। Our next topic is track of expenses, and we'll start this with Pallavi. As to how will you explain to the children about the track of expenses, which is a very very important point, जो हमें बच्चों को एक बहुत अर्ली एज में सिखानी चाहिए। तो ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस जब मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ ना, आई थिंक ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शी इज एट द एज ऑफ 6, और 6 में ना वो काउंटिंग जिस सीखे होते हैं। बट ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस जब वो क्लास 3 तक आ जाते हैं, क्योंकि उनको प्लस माइनस सब कुछ करना आ जाता है, तो बहुत आसान हो जाता है। आपने वो सिंपल सब्ट्रैक्शन देखा होगा। बच्चों को कैसे सिखाते हैं, आपके पास 5 चॉकलेट थी, 5 में से आप 3 खा गए, अब कितनी बची, आपके पास 2 चॉकलेट है ना। तो अब आपने क्या किया, आपने उसको रिलेट कर दिया उनके सिंपल टर्म्स में, कि अब आपने 5 में से 3 खा ली, मतलब 3 आपकी स्पेंड आउट हो गई, आपके उसमें से निकल गई, अब बची सिर्फ 2 आपके पास। तो इट्स नॉट इवन द चॉकलेट बट ऑल्सो द मनी काउंटिंग। और मनी जार में ये सिखाया जाता है, अगर आप देखोगे जो हम मनी जार कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाते हैं ना, वो कहते हैं आपने आज 7 रुपए उसमें डाले, कल जाके चेक करो उसमें कितना आपने डाला, उसमें से अगर आपने 2 रुपए निकाला और 2 रुपए का चॉकलेट खरीद लिया, तो वो आपके एक्सपेंस खाते में गया। तो अब आपने क्या करना है, नोटबुक में साइड पे लिखना है कि मैंने आज 7 रुपए डाले। दूसरी साइड आपने जाके करना है -2, क्योंकि मैंने 2 रुपए की चॉकलेट खरीद ली। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आ रहा है और बच्चे भी अब सीख रहे हैं। मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे हैं जहाँ पे बच्चों को इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी टर्म्स में सिखाया जाता है। बाकी एक एज यू ग्रो, कॉलेज वाले बच्चों के लिए अब तो बहुत इजी है कि आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हो। तो पासबुक में ना डेबिट और क्रेडिट, डीआर और सीआर जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर सिखा दिया जाए ना, तो बच्चों को पता चलता है कि आज हमने कितना एक्सपेंड आउट किया और कितना एक्सपेंसेस कहाँ यूज किया। आई थिंक दैट वुड बी मच मोर हेल्पफुल स्टूडेंट हु इज बिटवीन द एज ऑफ 10 to 18। ओके ओके, दैट्स पॉइंट, दैट्स अ स्ट्रांग पॉइंट। मोहक, आप बताएं आपकी एक्सपीरियंस से, हाउ विल यू एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन, टू किड्स अबाउट द ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस, हाउ दे नीड टू मेक श्योर कि ये उन्हें रखना चाहिए, एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। तो दो तीन तरीके हैं, एक डिपेंडिंग ऑन द एज। आज एक एज होती है जब वो स्कूल के बाहर से भी आइसक्रीम लेते हैं, और एक एज होती है कि वो स्कूल की कैंटीन में भी खा लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द एज, पॉकेट मनी को कैसे स्पेंड करना है, उसके लिए एक लिमिटेड पॉकेट मनी बांध दी जाए, और उनके एक्सपेंसेस के बारे में पेरेंट्स से बात करें, और उस बेसिस पे एक लिमिटेड पॉकेट मनी बांध दी जाए। उससे क्या होगा कि उनको ये सीखने को मिलता है कि मैं अपना गुजारा, जो पॉकेट मनी वाला गुजारा है, वो किस तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सेकेंडली क्या है कि आज जैसे पल्लवी जी का सरनेम गांधी है, मैं ठहरा मारवाड़ी, हमारे घर के खर्चों के बारे में तो हम सुन ही लेते हैं बचपन से ही कि ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस क्या चल रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझाना पॉसिबल नहीं कि बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, ये है ऐसा। तो उसके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज की जा सकती है कि आपके घर पे कोई बर्थडे हो, या किसी इवेंट, कोई पिकनिक है, ग्रुप फैमिली पिकनिक है, या फिर बच्चे को, भाई बहनों को बोला चलो यहाँ जाके आज तुम लोग इस मेले में जाओ, या इस रेस्टोरेंट में जाओ, या मॉल में जाओ, और उनको एक फिक्स बजट दो
या फिर उनको बोलो एक लिस्ट बनाए कि इसके इतने खर्चे लगे, मेरे केक का कॉस्ट इतना लगा, मेरी डेकोरेशन का कॉस्ट इतना लगा, मेरा ऐसा का। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से क्या होता है, वो माइंड एक्सरसाइज होता है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि यही बच्चे 10 साल बाद जब पेटीएम यूज करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा 100, 200, 500 रुपए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बट वो एक सबकॉन्शियस सेटिंग रहेगी माइंड में। तो फिर ऑटोमेटिकली वो बोलेगा यहाँ मुझे रुकना है, नहीं तो बस एक पासवर्ड और एक पिन यूपीआई पिन अवे होते हैं खर्चा आजकल। सो दिस इज माय पर्सपेक्टिव। राइट राइट, ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि ये अक्सर जिससे मेरे साथ भी होता है, क्योंकि समटाइम्स व्हेन आई जब मैं एक्सपेंसेस का ट्रैक नहीं रखता हूँ ना, तो एट टाइम्स आई एम जस्ट कीप ऑन आई एम डूइंग ऑन स्पेंडिंग, मतलब चल रहा है, बट वो मेरे को ट्रैक नहीं रहता कब रहता है। व्हेन आई चेक माय स्टेटमेंट तब मुझे पता चलता है आई इन माय लास्ट 1 वीक आई हैव रेकलेसली मैंने स्पेंड किया हुआ है। एंड दैट इज वेरी एसेंशियल कि हम अगर बच्चों को एक बहुत कम एज में अगर हम ये सारी चीजों के बारे में उन्हें समझाएं, उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है इस चीज के बारे में। The next topic which we'll discuss, this is our last topic, that is budget planning, and I think this is a very important topic which our children need to learn. But this time I'll start with Pallavi इस बार यहाँ से। तो पल्लवी प्लीज बताएं कि बजट प्लानिंग कितनी जरूरी होती है बच्चों के लिए। बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड लाइक मोहक ने अभी एक लाइव एग्जांपल बताया, पॉकेट मनी वाला जो है ना, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड वे टू टेल योर चाइल्ड कि दिस इज योर बजट एंड नाउ यू प्लान अकॉर्डिंगली। सो इट कैन बी अ वीकली बजट और अ मंथली बजट। एंड आई थिंक दिस इज अ राइट वे टू टीच योर चाइल्ड ऑन स्पेंडिंग ऑल्सो, क्योंकि इफ यू विल फाइंड हम भी जब बच्चे थे तो हमें ही पॉकेट अलाउंस से ही चीजें सिखाई जाती थी कि आपने कैसे किया और आप उसको कैसे से करोगे। एंड दिस इज अ क्लासिक वे टू टीच योर चाइल्ड। आई डोंट सी एनी अदर वे विच कैन टीच योर चाइल्ड अबाउट योर बजटिंग। एंड उसमें उनको बोल दिया जाता है कि अगर आपने खरीदना है इन फ्यूचर, यू वांट टू बाय अ सर्टेन गिफ्ट, यू सेव एंड अकॉर्डिंगली वो सेव कर 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 करके ही आगे चलते हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे आई कैन टेल एनी पेरेंट कि आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी दो, रिवॉर्ड्स करो, इंसेंटिवाइज करो और उसके ऊपर ऐड करो। तभी जब उसको आपने एक वर्क टास्क दिया है, इंसेंटिव दो, फिर उसके बाद उसको बताओ आपने अपने बजट में इतना पॉकेट किया है। राइट राइट, मोहक वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू एज वेल ऑन दिस टॉपिक। एंड आई थिंक आपने अभी इसके पहले वाले ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस में आपने काफी अच्छे इंसाइट दिए थे इसमें, बट वी लाइक टू हियर मोर ऑन टू दिस। यस, सो बजट की इम्पोर्टेंस सबसे पहले समझाई जाए कि आज सबसे एक थोड़ी सी गलती हो जाती है पेरेंट्स की, वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से बच्चों को ये तो बता देते हैं कि हमारे जमाने में आटा 5 रुपए में मिलता था, आलू अठन्नी में मिलती थी, इन सब बता देते हैं। बट ये फॉरगेट टू टेल कि आज जो अभी एक्सपेंसेस या अभी जो प्राइसेस चल रही हैं जिन चीजों की, आपको उसमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए। मेन पॉइंट बजटिंग का ये है कि छोटी छोटी बचत से, ये वर्ड बजट और बचत एक हिंदी वर्ड से ही निकला है। तो आप छोटी बचत आज करते हो तो वो छोटा छोटा मिलके, जैसे अभी आप बोल रहे थे मेरे साथ कभी होता है, या तो अमेजोन पे या तो स्विगी पे कुछ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हुई, तो अगर वो एक्स अमाउंट हो रही है, वो छोटी सी बचत होगी अगर मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा कि ये नहीं करना है, फिर वो मेरी आदत बन जाएगी कि वो नहीं करना है। तो बजट दो चीज होती है कि एक छोटी से बड़े डिफरेंस बनते हैं। आज अगर मैं इतना सेव करूंगा, हर महीने हर साल 10 साल बाद एक बड़ा फिगर हो जाएगा। और दूसरा है कि मेरी हैबिट जो है वो बजट के लिमिट्स में रहने की हो जाएगी। तो आई थिंक ये एसेंस समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको ये बोलना है कि आज अगर आपका दोस्त है वो 60 रुपए की आइसक्रीम खा रहा है और आप 20 रुपए की आइसक्रीम खा रहे हो, तो आप कंपेयर मत करो। आप ये देखो कि आप 40 रुपए बचा रहे हो और वही आपको मजा आ रहा है, तो ये 40 रुपए आपकी गुल्लक में जाएंगे। और ये 40 रुपए अगर आप रोज बचाते हो तो महीने के 1200 होते हैं, जो किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत अच्छी फिगर होती है। साल के 14,400 रुपए होते हैं। तो लाइक दैट, तो छोटे से ये भी काफी काफी मतलब काफी एजुकेशनली आपने इस चीज को मतलब बहुत बड़ी बात आपने कही कि इस चीज से बच्चे जब एक बहुत ही कम एज में ये चीज समझने लग जाते हैं कि हाउ दैट नंबर जो वो सेव कर रहे हैं अपने बजट में संभाल के, वो जब एक बहुत बड़ा फिगर बन जाता है, वो उनके लिए एक अच्छा एक टारगेट होता है। क्योंकि एंड दैट सर्टेन एज नो, उनके लिए वो नंबर बहुत ज्यादा प्रोवोकिंग होता है दैट इफ आई सेव आई एम गोना गेट दिस, मुझे मेरे लिए ये बाय द एंड मेरे लिए ये आउटकम होगा और ये कितना मेरे लिए हेल्पफुल होगा। दैट इज ट्रू।
सो वी कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हम बच्चों को एक्सपेक्ट करें कि हम बच्चों को ये चीज समझा सके, लेकिन ऐसे कुछ और टॉपिक्स भी हो सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ शायद ये चीजें हम अपने बच्चों को आज चिल्ड्रंस डे ही सही या किसी भी दिन हम उन्हें ये समझा सकें या बता सकें, और उन्हें फाइनेंशियली घर पे ही सही उन्हें लिटरेट कर सके, उन्हें इस चीज के बारे में ज्यादा जागरूक कर सके। तो पल्लवी, और ऐसे क्या टॉपिक्स या पॉइंट्स होंगे जो हमने शायद कवर नहीं किए, जो आप बताना चाहेंगे पेरेंट्स को और बच्चों को, जो उन्हें जानना जरूरी है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है? आई थिंक जो मोहक ने लास्ट में बोला ना, मैं बस उसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। कंपैरिजन, you know, this is what happens when you grow up and you'll always compare yourself before buying. So he has an iPhone which is iPhone 13, I have an iPhone which is iPhone 10, but should I upgrade myself to iPhone 13 or should I upgrade myself to iPhone 11 or 12? That depends upon your choice. But again, that comparison is something which, you know, as inherently we teach them and we try them, we हम बच्चों को सिखाते compete करो। अगर आप देखोगे ना, बच्चे इसके मार्क्स 10 आए, तुम्हारे 8 क्यों आए, तुमने 10 क्यों नहीं करे? आई थिंक हमें थोड़ा सा स्टेप बैक जाना चाहिए, देखना चाहिए कि 2 मार्क्स कम हुए तो वो 2 मार्क्स पे वर्क करना चाहिए था, rather than, you know, क्यों तुमको। और ये चीजें फाइनेंशियली भी होती है, बिकॉज इसकी सैलरी 10,000 है, तुम्हारी सैलरी 8,000 क्यों है, ये भी होता है। So this comparison thought process has to be brought into the child's mind in a positive way rather than in a negative way. You'll always find the comparison factor that is being there in our society is always negative comparison. एंड कहीं ना कहीं हमें एक स्टेप बैक लेकर उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में लेना चाहिए, ना कि अच्छा ये छोड़ के तुम ये क्यों कर दिए वाला एटीट्यूड हमें भी कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। आप देखो कि टीचर्स अब तभी ना, यू नो, मार्क्स की जगह वो ग्रेड सिस्टम इसीलिए लाए थे कि हम कंपैरिजन को थोड़ा ग्रेडिंग में कर देते। 80 मार्क्स वाला भी 85 मार्क्स के बराबर थे, तो वो इसीलिए लाया गया कि चलो ठीक, थोड़ा सा हम करें। अब यही चीज जब आप खरीदने जा रहे हो तब कंपैरिजन करो, बट इज इट वर्थ फॉर मी टू गेट a 10,000 thing extra? Is it worth for me to get something which I may require, but उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना क्या जरूरत पड़ता है, वो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा। Right, that's correct. Mohit, we would like to know your brownie points as to what you would like to add, जो हमने कवर करना चाहिए था बट हमने किया नहीं, बट जो कंसेप्ट हम अपने बच्चों को बता सकते हैं। वैसे इनके पॉइंट्स काफी अच्छे थे, एंड दिस डेफिनेटली आई थिंक कंपैरिजन इज द रूट कॉज। और 2 टाइप के फियर्स जो मैं अक्सर टेक्निकल एनालिसिस के एसेंस के लिए समझाता हूँ या मार्केट के मूवमेंट में बोलता हूँ, वो हमारे ह्यूमन बायोलॉजी में इनग्रेन्ड है। पहला फियर है कि कुछ खोने का फियर, फेल होने का फियर, और दूसरा फियर है कि मैं औरों के साथ नेक टू नेक नहीं चल रहा हूँ, ट्राइबल बिहेवियर, ट्राइब बिहेवियर होती है उसके साथ नहीं चल रहा हूँ। तो आप जैसे ही अपने आप को कंपेयर करने का फियर और कुछ खोने का फियर हटाते हो, और ये आप नोटिस करोगे, मैं जिन स्टूडेंट से मिला हूँ या मेरे जो सहपाठी रहे हैं, मेरे क्लासमेट्स रहे हैं, जिनके मॉम डैड बहुत स्ट्रिक्ट होके बोलते कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ मत करो, वो फ्यूचर में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं सेविंग्स इन्वेस्टमेंट की बात करूं, चाहे वो एक बिजनेस रिस्क की बात करूं, कोई इनिशिएटिव की बात करूं, वो बहुत बंधे हुए रहते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस बंधी हुई रहती है, उनकी आइडेंटिटी से वो जुड़े हुए नहीं रहते। बाद में कई साल बाद जाके व्हेन इट्स टू लेट, देन दे सडनली रियलाइज कि नहीं, मेरे को असल में तो वो करने का मन था। बट देन यू हैव लॉस्ट द बेस्ट टाइम टू डेवलप अ स्किल। So there are many people who are super talented if they get the kind of encouragement at a young age, जो कि हमारे कंट्री में मिसिंग है। और ये इसका मेजर रीजन वही है, शर्मा जी का बेटा, कि उसके मार्क्स इतने आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए, ऐसा। तो आई थिंक वो अगर पेरेंट्स हटा दे और एट द सेम टाइम उनको अपनी इंडिविजुअलिटी एक्सप्लोर करने का मौका दे, मैं क्लास में फर्स्ट आऊं या थर्ड आऊं, 90 लाऊं या 85 लाऊं, 5 साल बाद कोई नहीं पूछने वाला। बट वो जो क्लास 10 में एक हवा बना देते हैं, सिंपल वर्ड इन मुंबईया लैंग्वेज, जिसको हवा बना देते हैं क्लास 10 में, दैट इज आई थिंक वेरी इनकरेक्ट।
वहां से ही कंपैरिजन शुरू होती है, और आपके सारे रिलेटिव्स मिलके, उनको तो और कोई काम है नहीं, तो वो वहां पे आपको और इंकरेज करते हैं। सो यू थिंक, आई थिंक यू शुड लेट योर चाइल्ड बी फ्री, और आप उनके लिए प्राउड फील करोगे तो उनको कोई भी डाउन नहीं फील कराएगा। सो दैट इज आई हाउ आई जस्ट एड ओवर देयर, हम बहुत चीजें सिखाते हैं अपने बच्चे को। हम बच्चे को सिखाते हैं कि आपने अगर ये किया तो मैं आपको गिफ्ट ला के दूंगी, ठीक है। आपने ये किया तो चलो हम आपके लिए ये करेंगे, चलो वील डू द पार्टी लाइक दिस क्योंकि यू डिड सो वेल। हम ना स्पेंडिंग नहीं सिखाते। हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि आप कमा तो लिए, बट क्या उसको खर्च करने की कैपेसिटी आपके पास है, और उस खर्चे के लिए क्या आप सही खर्चा कर रहे हो, वो चीजें नहीं सिखाते। एंड ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि आप ना अपने बच्चे को खर्च करना भी सिखाओ, गलत खर्च भी करना सिखाओ और सही खर्च करना भी सिखाओ। उसके बाद बताओ ये गलत खर्च क्यों था। तो थोड़ा सा ना, कहते चांस तो दो गलत खर्च करने का, और उसके बाद उसको बताओ यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई थी, ये अगर ऐसे खर्च किया होता तो आप कहीं ना कहीं उसको मेंटेन कर पाते। हम, इफ यूल सी, ऑल द पेरेंट्स विल टेल सेव 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 सेव। कोई पेरेंट्स ये नहीं बोलता खर्चा करो खर्चा करो खर्चा करो खर्चा करो, नहीं करो। Right. बोलते आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स ने बोला कि चलो खर्चा करते हैं, ठीक है। वो चीज सीखने से ना मुझे बहुत जगह रियलाइज हुआ कि यहाँ मैंने गलत खर्च कर दिया, यहाँ मैंने सही खर्च किया। आप देखो कि ये कभी आपके पेरेंट्स ने नहीं बोला चलो खर्च करके आते, चलो तुमको पैसे खर्च करना सिखाते, आओ तुम्हें आज बाजार लेके जाते, आज दिखाते कैसे खर्चा किया जाता है। वो चीज नहीं सिखाते, और वो सिखाना भी बहुत जरूरी है। Right. Hey, I'll just Right. add this, this is a very good point. I'll just add this, मैं मिस आउट हो गया बोला, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि जो खर्चे वाली बात बोली, कि आप एक मनी के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन डेवलप कर लेते हो। बिकॉज आप जब भी सिर्फ बचाने का सोचते हो, एक वाइब्रेशन उसकी थोड़ी सी माइजर वाली, कंजूसी वाली हो जाती है। और ये वाली जो वाइब्रेशन है कि हम एक हैप्पीनेस एसोसिएट करें पैसों के साथ, ताकि वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आए कि और कमाना है। खर्चों की फिक्र नहीं, कमाना है। खर्चे तो लिमिट करनी है, बट जो फोकस है वो ये है कि हमको कमाना भी है। तो आई थिंक ये बहुत बूस्ट देगा। वेरी गुड पॉइंट। Right. I think the concluding part of the entire live session was very, very, informational. जहाँ पे हमने समझा कि spending जो है, जो खर्च करने का जो एक तरीका, वो बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। एंड कंपैरिजन कम करके उन्हें ज्यादा हम जितना बूस्ट कर सकते हैं, ज्यादा हम उन्हें एनकरेज कर सकते हैं, that is actually going to overall bring an overall development of them to understand, to absorb दूसरी चीजों को. Uh, Mohak and Pallavi, thank you so much for Thank being with us in this live session. It was such a great time today. Seriously, मतलब कैसे time निकल गया पता ही नहीं चला, discussing about these many topics and learning so many insights जो शायद हमारे viewers देखकर जरूर जाने होंगे, सीखे होंगे. Even I think उन्हें भी काफी इन चीजों के बारे में शायद knowledge ना हो, उन्हें भी ये चीज उस बेस लेवल पे समझ आई होगी. Thank you so much for being with us on today's session, and we hope to connect with you soon in future. thank you. Bye. Take Thank you. care. Bye bye to Goodbye. both of you. Both of you. Take Have a care. good day. You too. Yes, so we had a very interesting session today on the eve of on Children's Day, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें सीखी. मुझे भी शायद ऐसे लगा कि शायद कुछ चीजें मैं किसी को अगर समझाने बैठा तो मैं भी शायद समझा नहीं पाता about assets and liabilities, but this was so easy for me, for me to explain it to anyone who has no idea. चाहे बच्चे हों या बड़े, जो भी, आप उन्हें जितनी ईज वे में आप उन्हें बता सकते हैं, that really helps. So that was the entire session which we had with Pallavi and Mohak. In future, we are going to come up with even more interesting and exciting and educational sessions like these. So if you want to check all of them, then do follow us. If you have any queries, any doubts, then you can comment down into this section, which we will be uploading it into our video section. या आप पल्लवी या मोहक से भी आप इंडिविजुअली बात कर सकते हैं. अगर आपको उसके अलावा और भी कुछ जानकारी जाननी है तो आप हमें डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल हेल्प यू आउट in solving all your queries or your doubts. If you want to learn more about stock market, you can visit our website at TradeSmart, and you can also open your free Demat account where we offer the lowest brokerage charge of 15 rupees. आज के लिए बस इतना ही.
मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग इंस्टाग्राम लाइव सेशन, एक अलग ही टॉपिक पे अलग सेट ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।